My dear students, Assalamu alaikum wa adab. In continuation to the online classes, once again I am Mir Nisar, CRC, Zone Devsar, District Kulgam. Today my topic is again comparing quantities for class 8th. Subject is mathematics. In the previous lesson of this chapter we have solved it is exercise number 8.1, and today we have to solve 8.2. So I would like you to open your mathematics book, page number 136, exercise 8.2. My dear students, so far as this chapter is concerned, this is the chapter which we need in every state of our life. We again and again in our life come across the situation where we need this comparing quantities. As I have already told you that to solve the question is based on or related to this topic, that is comparing quantities, we use some terms like ratio, percentage, etc. Before we will directly come to question number 1, let us revise. Yele kuni saat shopping karne chi gasan kuni malस mans ya kan cheez ch heaven tat ch asan kuni saat discount dit. Suppose tat ch asan MRP likhit. Suppose MRP ch kuni cheezas likhit, MRP maximum retail price. Suppose ich likhit kuni 120. Pat ch asan likhit discount. Suppose it is 15%. Es kit kat karo calculate desti es kota pons chu emis diun. Kaz preth sat winken chu situation preth sat hekun es mit ki he yat kota ye vayt vain es hek kaso pan hekai. We should be competent to calculate ourselves. So es kit kat karo ye es karan ye percentage ches karan es karan ye kota bani discount kota bani by 15% of akhathu. That is 15 by percent matlab by 100 into 120. 0 is cut. 15 into 12 is 180 by 10. 0 is cut, that is rupees 18. तमिक मतलब गो अगर 120 कुन लिखित 15% discount, 15% of 120 18 नेरान, we have to pay 120 minus 18, that is 102 rupees. मगर कुछ साथ छु आसन लिखित MRP छु आसन पत छु आसन plus tax. Suppose 15% छु tax लिखित, वन छन discount किया वन छु tax लिखित, that is 15%. Es kota em sat kota छु ऐसा चीजस पोंसे दिउन. Es छु बे करन 15% of 120 द्राव 18 rupees, पत छु ऐड करन यत 120 plus arda, that is 138 we have to pay. इथे कछ loss the gain. अगर कहाँ चीज ऐसे 170 मोहर रुपयन छु मल अथ अगर प्रॉफिट छु 15% जोन अथ छु प्रॉफिट दपन 15% गस बन तेल कतिस कुन होन अस करो बे 15% 120 तुम गए 18 रुपये तुम हुर्राओ 18 रुपये, दैट इज 138. अगर वह कुछ चीज लॉस गुमुत 18%, 170 मोहन मल लॉस 18% गुमुत, तम लगो 170 मोहन वसन 18 तमिस तीन 102 रुपये. तो हम सीधे आएंगे क्वेश्चन पर. Question number 1 is a man got 10% increase in his salary.
ये परसेंटेज हमें परसेंट से अमाउंट कैसे बनता है और अमाउंट को कैसे परसेंटेज में तब्दील किया जाता है, तो ये हमें आज सीखना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी को 10% का इजाफा हुआ अपनी सैलरी में, तनख्वाह में। इफ हिज न्यू सैलरी इज 51,54,000 फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। अगर इसका नया तनख्वाह 10% जब उसको एडिशनल दिया गया, इंक्रीज किया गया 10%, तो इसका पे बन गया अब 1,54,000। तो इसकी ओरिजिनल इससे पहले क्या थी? तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन। इंक्रीज इन सैलरी, इंक्रीज इन सैलरी इज इक्वल टू 10%। न्यू सैलरी इज इक्वल टू rupees 1,54,000. Now we have to find what was his original salary. Before 10%, what was his salary? There are two methods to solve these type of questions. One we call the unitary method. Second we call the shortcut or general method. So for this question we will try both the methods. First, I will solve it with unitary method. What is this unitary method? Here, I assume here his original salary as ₹100. Let the original salary इज इक्वल टू ₹100। मैंने फर्ज किया कि इसकी ओरिजिनल सैलरी 100 थी, तो इंक्रीज कितना हुआ? 10%। इंक्रीजिंग अमाउंट, न्यू सैलरी कितना हुआ? इस हिसाब से न्यू सैलरी 100। अगर इसका ओरिजिनल सैलरी थी तो 10% इसका इजाफा हुआ, तो दैट इज 110 बन गया इसका। जब इसका 110 बन गया तो इसका ओरिजिनल था 100। तो हम लिखते हैं व्हेन न्यू सैलरी इज ₹110, the original salary is equal to क्या था उस वक्त? ओरिजिनल सैलरी 100। तो यूनिटरी क्या होता है? अब ये एक पर हम करते हैं। when न्यू सैलरी इज ₹1, देन ओरिजिनल सैलरी, जब एक पर हम करते हैं तो इसका ये डिवाइड होगा 100 by 110, 100 by 110। When न्यू सैलरी इज, नए कितने हैं? 1,54,000, देन न्यू सैलरी इज इक्वल टू, इसका हम ये मल्टीपल करेंगे 100 by 111 into 154,000. This 0 is cut, this 0 is cut. 11 1s are 11, 11 1s are 11 4s are 11 zeros are zeros are. That is 1400 and 0000. That is ₹1,40,000 is his original salary. Therefore, his original salary was ₹1,40,000. This we call the unitary method. Second we call the direct method or general method. Let us see that method too.
यूनिटरी मेथड में हम 100 एज्यूम करते हैं, 100 से शुरू करते हैं, फिर 1 का देखते हैं, फिर जो दिया हुआ है उसका देखते हैं। लेकिन जनरल डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, लेट हिज ओरिजिनल सैलरी बी और एक्स। डायरेक्ट मैंने किया, एक्स इसका मैंने रखा, फर्ज किया इसकी ओरिजिनल सैलरी एक्स है, तो इसका 10%, ये अपनी सैलरी, देयरफॉर ये उसकी ओरिजिनल सैलरी है एक्स, उसका फिर इसका 10% प्लस इसका 10%, 10% ऑफ एक्स, ये कितना बनता है 1,54,000। हाँ, ये हल करो आप जरा, एक्स प्लस 10/100 इंटू ऑफ का मतलब होगा इंटू एक्स इज इक्वल टू 154,000 इंप्लाइज 10 1 हजार 10 10 हजार। यहां एक्स है और इस टर्म में भी एक्स है, तो एक्स बाहर निकालेंगे, यहां रहेगा 1 प्लस यहां रहा 1/10, दोनों का मल्टीपल है एक्स इज इक्वल टू 154,000। इंप्लाइज को हल करेंगे, 10 1 10 प्लस 1 दैट इज 11/10, एक्स इज इक्वल टू 154,000। इंप्लाइज ओनली एक्स इज इक्वल टू 154,000। ये 11/10 यहां मल्टीपल है, जब ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आरएच की तरफ तो ये मल्टीपल ही रहेगा लेकिन उल्टा पुलट होके। इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 154,000 इनटू उल्टा पुलट जब करेंगे इसको 10/11 दैट इज इक्वल टू 11 1 हजार 11 1 हजार 11 4 हजार 0 0 0 दैट इज 1 4 10 से हजार देंगे 0 0 0 एंड 0 1,40,000 implies x is equal to 1,40,000. Therefore, the original salary is equal to rupees or was 1,40,000. This is question number 1. Now question number 2. Question number 2 is, on Sunday 840 people went to zoo. इतवार को 845 लोग जू गए। On Monday only 169 people went. लेकिन मंडे को सिर्फ 169 गए वहां। What is the percent decrease in the people visiting the zoo? कितना परसेंट डिक्रीज हुआ? कम हो गए पीपल, लेकिन कितने परसेंट कम आ गई? अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल विजिटेड जू। ये क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन, नंबर ऑफ पीपल विजिटेड जू ऑन संडे। संडे कितने हो गए? 845। इसी तरह नंबर ऑफ पीपल विजिटेड जू ऑन मंडे। मंडे कितने गए? ये कहता है 160 ओनली, 169 ओनली। हम पहले देखेंगे डिक्रीज कितने विजिटर्स हुए। देयरफॉर number of decreasing visitors, डिक्रीज कितने हो गए? 845 संडे को आए थे, अब सिर्फ आ गए 169। तो इसका हम माइनस करेंगे 15
that is 6, 7 and that is 6, 676 कम हुए हैं। Therefore decrease percent कितने परसेंट डिक्रीज हुए हैं, कितने हो गए डिक्रीज टोटल 676। कितने में कितने आए थे, उसका काम कितना, किस में से 670 काम हो गए, 845 से काम हो गए। 845 दूसरे दिन 845 से 676 कम हुए। that means 676 by 845 into 100, ये परसेंटेज बन जाएगा। जितने काम हुए हैं, कितने थे पहले, अब कितने कम हुए हैं, कितने थे पहले कितने काम हुए हैं बटा कितने थे पहले into 100, that is percentage। 676 काम हुए हैं, पहले थे 845 into 100, that is 5 2s are 5 zeros are 5 1s are 5 6s are 5 9s are। Now with 13s are 13 5s are 13 2s are again 5 13 1s are 13 2s are, that is 40%। तो इसका मतलब sorry 13 1s are 13 4s are, that means 20 into 4, that is 80%। Therefore there was 80% decrease in visitors on Sunday। Now question number third is a shopkeeper buys 800 articles for rupees 2400। एक शॉपकीपर ने 24 आर्टिकल्स खरीदे हैं 2400 में। That means cost price of 80 articles is 2400। मैं लिखूंगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इज इक्वल टू रुपीज 2400। फिर क्या कहता है, एंड सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%। ये इसमें से इजाफा, इसको प्रॉफिट मिलता है 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। एक आर्टिकल का हमें देखना है कितने में वो इसने भेजा। तो हम पहले देखेंगे वन आर्टिकल का सीपी क्या था। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल 80 का 2400 है, वन का कितना होगा 2400 by 80, that is 8 3s are 8 zeros are, that is rupees 30। प्रॉफिट कितना इसने कमाया, that is 16%। Therefore SP selling price of each article, वन लिखा है ई, वन आर्टिकल इज इक्वल टू, तो
एक इसका सीपी, एक आर्टिकल का सीपी था ₹30, 60% उसने उस पर कमाया, तो अब एसपी क्या बन जाएगा? एक तो ये ₹30 जिसका इसने खरीदा था, प्लस 16% ऑफ दिस 30, प्लस 16% ऑफ 30। ये हल करेंगे हम, 30 प्लस 16% मतलब हो गया बाय 100 इंटू 30। 0 0 is cut, that is 30 plus 16 into 3 is 48 by 10, that is equal to 30 plus 48 by 10 is equal to 4.8, that is equal to 34.8। और 0 भी लिख सकते हैं यहां, ₹34.80। Therefore, SP of selling price of each article or one article is equal to ₹34.80। So now it was question number 3rd. Now it is question number 4th. Question number 4th is the cost price of an article was 15,500। मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 4th, cost price of article ₹15,500। फिर कहता है ₹450 were spent on its repairs। इसको मरम्मत के लिए ₹450 खर्चा आया। रिपेयरमेंट चार्जेस, रिपेयरमेंट charges is equal to ₹450। अब क्या करना है? If it is sold for a profit of 15%, अब इसको बेचा गया, कितने में बेचा गया? 15% प्रॉफिट के साथ। फाइंड द एसपी। तो हमें बताना है कि कितने में इसने बेचा है। तो हम पहले देखेंगे, Therefore ये भी इसका कॉस्ट प्राइस में आएगा। Therefore नेट कॉस्ट प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस था 15,500, इसको रिपेयरमेंट में लग गए 450। तो हम लिखेंगे Therefore कॉस्ट प्राइस आफ्टर रिपेयरमेंट या नेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, एक तो 15,500 में खरीदा प्लस 450, दैट इज ₹15,950 में उसने अब पूरा इसको तैयार हुआ ये। तो नाउ प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट कितना है, कितने में किस प्रॉफिट के साथ बेचना है इसको? 15% के साथ, 15%। Therefore selling price of the article, देखो इसने पहले, अब पूरा इसका अपना खर्चा है, मतलब इसको खरीद है ये 15,950, इसको पहले ये आनी चाहिए 15,950 प्लस इसका 15% ऑफ 15,950, दैट इज 15,950 प्लस 15 by 100 into 15,950। This 0 is cut, this 0 is cut। तो यहां हम देखेंगे इसका मल्टीपल क्या बनता है।
ये बनता है 15,950। 15 को जब इससे ज़र्ब करते हैं तो ये बनता है 23925। 23925 by 10। 23925 by 10। Yes, that is equal to 15,950 प्लस इसको 10 को हटाएंगे, यहां पॉइंट आएगा 2392.5। इसको जब ऐड करते हैं हम तो ये आता है 18342 रुपीज 18342.50। Therefore, SP of the article is rupees 18,342.50. Now it is question number 5th. Question number 5 is a VCR and TV wire bought for 8,000 each. एक VCR और TV 8,000 के हिसाब से खरीदे गए। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन VCR। VCR को इसने 4% लॉस के साथ बेचा। द VCR ऑन द VCR एंड ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन TV। लेकिन TV पर उसने 8% कमाई। VCR पर 4% नुकसान दे दिया और TV पर 8% कमाए, प्रॉफिट कमाया। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। आप बताओ क्या परसेंट उसने लॉस किया, ओवरऑल क्या लॉस है उसका, क्या गेन है उसका परसेंट के हिसाब से। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर it is question number 5. Question number 5. Solution. Cost price of TV is equal to rupees 8,000. Similarly, cost price of VCR is equal to rupees 8,000. Total cost price is equal to 8,000 plus 8,000, that is rupees 16,000. तो आप क्या कहते हैं कि लॉस ऑन VCR 4%। इसने लॉस दे दिया VCR को, जब बेचा तो 4% लॉस पर। Therefore, SP सेलिंग प्राइस ऑफ VCR, VCR को कितने में फिर बेचा? एक तो 8,000 इसने खरीदा था, इसको कम हुआ, इसको 4% ऑफ 8,000, विच इज इक्वल टू 8,000 minus 4/100 into 8,000. 2 zeros got, 2 zeros got, that is 8,000 minus 4 8 zeros are 0, 4 8s are 32. That is 7,000 rupees, 7,600
680 7680। तो जब 4% से लॉस दे दिया वीसीआर पर तो इसने इसको भेजा 7680 पर। अब गेन और प्रॉफिट, गेन ऑन टीवी, टीवी पर कितना इसने कमाया? इसने कमाया 8%। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, तो टीवी को कितने में फिर बेचा? एक तो बेचा अपने 8000 जिसमें इसने खरीदा था, प्लस 8% इस 8000 का, 8% ऑफ 8000 विच इज इक्वल टू 8000 प्लस 8% मतलब 8/100 into 8000। 2 zeros got, that is 8000 plus 8 zeros are 0, 8 8s are 64, which is equal to 8640। तो ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस टीवी का। देयरफॉर टोटल सेलिंग प्राइस, total selling price of VCR and टीवी, टीवी और वीसीआर को जब इसने बेचा तो कितने में बेचा? हो गया इसका सेलिंग प्राइस 7680 प्लस 8640 which is equal to 0 plus 0 is 0, 8 plus 4 is 12, 6 plus 6 is 12 and plus 1 is 13, 7 plus 8 is 15 and 16. That means he has sold both TV and VCR at price of 16,320, but he had bought both the TV and VCR at the price of 16,000. Sold it at 16,300. Here CP is less than SP, or we can say SP selling price is more than CP. When selling price is more than cost price, then there is gain. I will write here selling price SP is greater than CP cost price, therefore gain or profit कितना बन गया इसको प्रॉफिट या गेन जिसको हम कहते हैं 16,320 minus 16,000 that is rupees 320। इसने ओवरऑल ट्रांजेक्शन पर 320 रुपया कमाए। तो ये परसेंटेज अब बोलता है फाइंड गेन और लॉस परसेंट, ये परसेंट में हमें बताना है कि कितना परसेंट है। तो परसेंट में हम कैसे, देयरफॉर गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कितना कमाए इसने, टोटल कितना कमाए। जैसे मैंने बताया परसेंट कैसे हम करते हैं, इसने कमाया 320 कितने में कमाया, इसने अमाउंट कितना लगाया था 16,000, हो गया डिवाइड बाय 16,000 into 100, दिस इज परसेंटेज। 2 zeros got, 2 zeros got, 1 zero got, 1 zero got, 16 ones are 16, 16 twos are, that is 2%. Therefore he gained 2% on whole transaction। पूरे ट्रांजैक्शन में इसको 2% का प्रॉफिट मिला। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 6। ड्यूरिंग ए सेल, a shopkeeper
offered discount of 10% on the market price of an item. एक सेल में 10% की डिस्काउंट है, जो मार्केट प्राइस है, जो MRP है, चीज पर लिखा हुआ, इसमें 10% की डिस्काउंट है. What would a customer have to pay for a price of for a pair of jeans marked at 1450 and two shirts marked at 850. ये कहता है कि 10% की डिस्काउंट एक जगह पर दी जाती है, एक शॉप में. तो एक आदमी, एक कस्टमर 2 जीन्स खरीदता है, हर जीन का कीमत 1450 रुपये है, और 2 शर्ट्स खरीदता है, हर शर्ट की कीमत 850 है. तो आप बताओ इसको कितने पैसे देने पड़ेंगे. तो हम लिखेंगे मार्केट प्राइस. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. सॉल्यूशन. मार्केट प्राइस ऑफ 2 जीन्स. चलो हम एक साथ लेंगे 2 जीन्स इज इक्वल टू, एक जीन का 1450 है, तो 2 जीन का कितना होगा. जो मार्केट प्राइस ऑफ मैं फिर प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ ए जीन्स एंड ये क्वेश्चन में थोड़ा प्राइस what would be what a customer have to pay for a pair of jeans नहीं, यहाँ वैसे पेयर ऑफ जीन नहीं है. यहाँ क्वेश्चन में है हाउ टू पे फॉर ए जीन्स मार्केट एट 1450 एंड 2 शर्ट्स मार्केट एट ₹800. तो यहाँ एक ही जीन है. मार्केट प्राइस ऑफ ए जीन्स इज इक्वल टू ₹1450. तो लिखेंगे हम मार्केट प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स, दैट इज 850 इंटू 2, क्योंकि ये 2 है शर्ट्स, दैट इज 1700. टोटल मार्केट प्राइस of jeans and 2 shirts कितना बनता है पूरा. that is 1450 plus 1700, that is 3150. हाँ 3150. Discount is equal to 10%. Therefore, amount customer has to pay. तो अब कस्टमर को कितना देना पड़ेगा. ये 3150, इसका माइनस इसको होगा डिस्काउंट 10% ऑफ 3150. 10% of 3150, which is equal to 3150 minus 10 by 100 into 3150. This 0 is got, this 0 is got, this 0 is got, this 0 is got. That is 3150 minus 315. 10 minus 5 is 5. 4 minus 1 is 3. 11 minus 3 is 8. 2835. Yes.
2835. Therefore, the customer has to pay rupees 2835. Now it is question number 7th. A milkman sold 2 of his buffaloes for rupees 20,000 each. On one he made a gain of 5%. कहता है कि एक मिल्कमैन ने अपने 2 बफलोज बेच दिए हैं at the rate of 20,000 each. मतलब 2 बफलोज को इसने 40,000 में बेच दिया 20,000 ईच के हिसाब से. On one he made a gain of 5%. एक में इसको 5% का 20,000 को जब इसने बेचा तो 5% का फायदा हुआ. एंड ऑन द अदर ही लॉस 10%. तो दूसरे को भी 20,000 में बेचा लेकिन उसका नुकसान इसको हो गया 10%. फाइंड इज ओवरऑल गेन और लॉस. इस आप बताओ इसको ओवरऑल लॉस हुआ या गेन हुआ. मैं लिखता हूं सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बफलो ₹20,000. Therefore, selling price of both buffaloes, दोनों को मिला के कितना पैसा मिला उसको. Is equal to, that is 20,000 into 2, that is rupees 40,000 में उसने दोनों बेच दिए. Let cost price of one buffalo be X1 and other be X2. मैंने सपोज किया कि कॉस्ट प्राइस हमें देखना है कि ओवरऑल इसको लॉस हुआ लेकिन हमें पता नहीं है भी कॉस्ट प्राइस क्या है इनका. हम पहले कॉस्ट प्राइस देखेंगे इनका. एसपी तो पता है हमें 40,000 है. तो मैं लेट करता हूं एक बफलो का X1 रुपीज है कॉस्ट प्राइस, दूसरे का X2 है. Therefore, गेन है पहले पर. गेन ऑन वन बफलो. एक बफलो पर गेन कितना है? दैट इज 5%. Therefore, cost price of that buffalo, उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? X1. इसका हमने X1 ले लिया है. इसका मतलब है तो यहां मैं लिखता हूं कॉस्ट प्राइस मैंने लिया गेन. Therefore, 5. एक तो अगर मैंने इसका X1 लिया कॉस्ट प्राइस एक बफलो का, इसका 5% गेन है. इसका मतलब है X1 प्लस 5% ऑफ X1 जितने कि इसमें इसको ये जितने रकम में इसने खरीदी है वो मैंने एज्यूम किया X1 और इसका 5% वो बनना चाहिए ₹20,000 जिसमें उसने इसको बेचा है. Implies X1 plus 5/100 into X1 is equal to ₹20,000. Implies 5 1s are 5 20s are. X1 हम इसको कॉमन करेंगे तो यहां आएगा X1 के बदले यहां 1 प्लस
1/20, दोनों का ज़र्ब है, इसका भी x1 है, इसका भी x1 इज इक्वल टू 20,000। इंप्लाइज इसको हल करेंगे, 21 प्लस 1, 21/20 x1 इज इक्वल टू 20,000। इंप्लाइज दैट खाली x1 इज इक्वल टू 20,000 इंटू, इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे लेकिन ये उल्टा पलट हो जाएगा, 20/21। तो इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू, तो इसका जब यहां हम इसका जब हम ज़र्ब निकालते हैं तो ये बनता है 20/21, तो ये बनता है 19,047.619, ये कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा यहां हमें। तो इसी तरह लॉस ऑन सेकंड बफलो और अदर बफलो, लॉस कितना है 10%। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस नहीं, देयरफॉर बाय द क्वेश्चन इसका हमने x2 लिया है कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर एक तो वो x2 प्लस 10% ऑफ x2, ये भी बनना चाहिए 20,000। इंप्लाइज x2 प्लस 10/100 ऑफ का मतलब हुआ इंटू x2 इज इक्वल टू 20,000। 10 1,000, 10 10,000। तो हम यहां लिखेंगे इसका कॉमन करेंगे x2, यहां आएगा 1 प्लस 1/10 इंटू x2 इज इक्वल टू 20,000। हल करेंगे 10 1 10 प्लस 1 इज 11/10, x2 इज इक्वल टू 20,000। इंप्लाइज खाली x2 इज इक्वल टू 20,000 इंटू, ये भी यहां ट्रांसपोर्ट होके उल्टा पुलट हो जाएगा, मतलब 11/10 को बनेगा 10/11 विच इज इक्वल टू, इसका भी हम ज़र्ब देखते हैं क्या बनता है, इसका बनता है इसमें लॉस, सॉरी इसमें लॉस है x2 इसमें लॉस है, यहां माइनस है, ये सॉरी यहां भी माइनस, क्योंकि ये लॉस है ये माइनस आएगा, -10%, यहां भी -10, यहां भी -10, तो यहां आएगा फिर 10 1 10 -1 दैट इज 9/10, 9/10 x2 इज इक्वल टू, ये 9/10 यहां उल्टा पलट हो जाएगा तो बनेगा 10/9। तो इसको इंप्लाइज दैट x2 इज इक्वल टू, इसको हम अगर ज़र्ब करेंगे मल्टीपल करेंगे तो ये बनता है 2 2 2 2 2 22,222.222। Therefore total cost price of two buffaloes is equal to x1 प्लस x2। x1 कितना आया था हमारा 19,047.619 प्लस x2 कितना आ गया 22,222.222। इसको हम जब ऐड करते हैं
तो ये बनता है 41,269.84। ये अमाउंट बनता है इसका टोटल कॉस्ट प्राइस। Therefore here CP कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन SP। जब CP कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस का तो फिर लॉस होता है। Therefore लॉस इज इक्वल टू कितने में इसने खरीदे थे 41,269.80 माइनस इसने कितने में बेची, इसने बेच दिए ये 40,000 में, विच इज इक्वल टू रुपीज 1,269.80 is his overall loss. Now it was question number perhaps it was question number 7th. Now it is 8th. Question number 8 is the price of a TV is 1,300. Price of a TV is 1,300. 13,000. The sale tax charges on it is at rate of 12%. मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 8th. Price of TV is equal to rupees 13,000. सेल्स टैक्स चार्जेस है इस पर, वो 12% है। सेल्स टैक्स चार्जेस इज इक्वल टू 12%। फिर क्या कहता है, फाइंड द अमाउंट दैट द फहीम विल हैव टू पे टू बाई इट। अगर फहीम एक आदमी है, उसको ये टीवी खरीदना है, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट फहीम हैज टू पे फॉर टीवी इज इक्वल टू, एक तो इसको 13,000 देने हैं प्लस 12% इसका, 12% ऑफ 13,000 विच इज इक्वल टू 13,000 प्लस 12/100 into 13,000. 2020 cut, that is 13,000 plus 12 zeros are 0, 12 threes are 36, 12 ones are 12 and 3 are 15, which is equal to rupees 14,560 is our answer. Similarly, it is Akram bought a pair of skirts at a sale when the discount given was 20%. It is question number 9th. Question number 9th, solution. Discount on skirts is equal to 20%. If the amount he paid is 1,600, amount paid by Akram
इज इक्वल टू ₹1600। तो क्या करना है, फाइंड द मार्केट प्राइस। हमें देखना है कि इस पर मार्केट प्राइस क्या था, मतलब उस पर लिखा क्या था, जिस पर फिर डिस्काउंट 20% करके 1600 उसने दे दिए। तो मैं लिखता हूं, लेट द मार्केट प्राइस of pair of skirts was X, ₹X। सपोज किया मैंने X, तो देयरफॉर ये X जो मार्केट प्राइस था माइनस उसका 20% ऑफ X, दैट इज इक्वल टू 1600। 1600 है या 1000, पहले 1600, हाँ। implies that x minus 20/100 into x is equal to 1600, implies that 21s are 25s are। इसका कॉमन करेंगे, यहाँ x यहाँ 1 रह गया, 1 minus 1/5 into x is equal to 1600, implies 5 are 5 minus 1 is 4/5x is equal to 1600, implies that only x is equal to 1600 into 5/4. 4 1s are 4 4s are 4 zeros 4 0, implies x is equal to 400 into 5, that is 2000. Therefore market price of pair of skirts was ₹2000. And for the 10th question, you will try yourself. Hope you have understood, you have learned to solve the question based on this percentage. Thank you.